हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Decline of the Harappa civilization. There is a most important question. The decline of the Harappa civilization. The Harappa civilization flourished till 1900 BC. There is a most important here. The Harappa civilization flourished till the 1900 BC. The period following this is marked by the beginning of the post-urban phase of later Harappan phase, and this phase was characterized by the gradual disappearance of the major traits such as a town planning. Art of the written is a uniformity, is a weight and measure, is a homogeneous in a poetry, design, etc. There is the most important here. The decorations is a cover a period from to the 1900 BC to 1400 BC, and there was also the shrinkage in their settlement area. For instance, Mohenjo-daro was reduced to a small settlement of 3 hectares from to the original 85 hectares to about the end of the later phase. There is a population appear to have shifted to other area. It is indicated by there is a large number of new settlement in the outlying area of Gujarat, East Punjab, Haryana, and the Upper Doabs is during the later Harappan period. There is a most important here, and some things of the decline of the Harappa civilization here. You may be wondering how did Harappan civilization come to an end? Well, scholars put forward many of theories in this regard. There is a most important here. The first year, it is suggested by some scholars that is naturally is climates such as a flood and the earth is a quake might has a causing the decline of the civilization. It is a belief that is earthquake might has been arise there level of the flood plan of the lower course and the Indo rivers. It's a blockade to the passage of the rivers water to sea and resulting in their flood which the mine has swept the city of Mohenjo-daro. However, this is only explained the decline of Mohenjo-daro as not be whole civilization. And second here, the increasing aridity and the drying up to the rivers is a Ghagar, is a Haka, and the account of there is a change in the river's course according to the some scholar. Might have contributed to the decline, and this theory states that there was no increasing and added to the condition by around 2000 BC. And this might has affected to the agricultural productions and led to be a decline. The next year is the Aryan invention theory is also put forward as a cause for the decline according to this. The Harappa civilization was destroyed by the Aryan who come to the India and from northwest around is a 1500 BC. However, on the basis of the closer and critical is analysis of the data, and this view is completely neglected today. And thus there is no single case that is explained to the decline of the civilization in the totality, and there is a maximum this can be explained the decline of the contained site or area only. Hence this theory has a meet with the criticisms and the nevertheless and the archaeologically is evidence indicate that is Harappan civilization did not collapse and also is a sudden but a decline gradually and ultimately is a merged with the other local culture. अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का जो है 1900 ईस्वी तक जो है फली फूली रही। इस सभ्यता के बाद की अवधि को नगरी सभ्यता के बाद के चरण यानी उत्तरवर्तीय जो है हड़प्पावासी काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषताओं को इस प्रकार से रेखांकित किया गया है कि इसमें नगर योजना, लेखन कला और माप तोलों में जो एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि जैसे मुख्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त होने लग गए थे। और यह अधोपतन जो है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व मध्य देखने को आया है। आबादी के क्षेत्र में भी सुधरने लग गए थे। उदाहरण, उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था, इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सुकुर कर रह गया था। ऐसा लगता था कि यहाँ की आबादी
किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई थी। इसका संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और अपर दोआब क्षेत्रों के जो है बाहरी क्षेत्रों में भी पाई गई नई बस्तियां को अनेक स्थापन हुई। तो ये बातें सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा कल्चर का जो है पतन कैसे हुआ। आपको हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक अपने अपने मत दिए हैं। पहला तो यही आता है, कुछ विद्वानों का सुझाव है कि बाढ़ और भूकंप जैसी जो है प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के जो है निचले मैदान, बाढ़ वाले क्षेत्रों का स्तर ऊंचा उठ गया होगा। इसे समुद्र की तरफ जाने की नदियों के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी और इससे मोहनजोदाड़ो के नगर डूब गया होगा। परंतु इससे केवल मोहनजोदाड़ो के खत्म होने का उल्लेख मिलता है, न कि पूरी सभ्यता का। और ये एक फिल्म में भी दर्शाया गया था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो फिल्म में, जिसमें इस बात का जो है दिखाया भी गया था। कुछ विद्वानों का ये मत अनुसार जो है घाघर हाकार नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण भी जो है शुष्क बंजर धरती जो है बढ़ती चली गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है बंजरता की परिस्थिति बढ़ती गई, इससे कृषि के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा, जिससे इसका लोप हुआ होगा। अगर तीसरी बात करें तो ये भी दर्शाता है कि पतन के कारणों में आर्य के आक्रमण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आंकड़ों को आलोचनात्मक एवं गंभीर विश्लेषण के आधार पर अब इस बात को जो है पूरी तरह से नकार दिया गया है। अगर इस प्रकार कोई भी एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जिसके संपूर्ण सभ्यता के विनाश का पता लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिर्फ कुछ विशेष स्थलों या क्षेत्रों को नष्ट होने के संबंध में ही पता चल सकता है। अंत प्रत्येक सिद्धांतों की आलोचना हुई है, फिर भी पुरातत्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक तो नहीं हुई होगी, बल्कि वो धीरे धीरे हुआ होगा और अंत में ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं में मिलती जुलती चली गई होगी। तो ये बात कई मानने में सही भी है, क्योंकि जो है एक पूरा सभ्यता खत्म होना स्वाभाविक बात नहीं है, और इस बात का जो है कोई भी स्कॉलर पूरी तरह से प्रमाण देने में सफल नहीं हुए हैं।